कैसे हैं सौरभ जी? Also Oatmeal खायचो सगळा. Oatmeal खायचो आज. Oatmeal सगळा.
जय जय सौरभ जी, आप है? जय जय प्रीतेश। જયનંદ કુંજન. કેમ છે? How was Jena? જૈના વોઝ ઓસમ. બસ મજામાં જો. તું કેમ છે? બસ મજામાં ચાલે છે. પછી ત્યાં ત્યાં પછી અમે માયામી ગયા હતા અને માયામી સંઘમાં પરમ દિવસે એક ટોક આપ્યો. Oh, okay. Yeah, had couple of talks at Jaina and one talk at Miami Sangh. That's good. Yeah. અમુક જણા પછી ત્યાં જે જેનામાં ના આવ્યો એ લોકો માટે મિસ ના થાય. શું એ લોકો શું? એટલે મિસ ના થાય, રાઈટ? ત્યાં ત્યાંનો ના, some of them attended, so I made sure કે you know both they also had something to learn. કલાકમાં તમે કેટલું કવર Right. કરી શકો, right? So That's the thing. huh? It's a start, start for people. That's the main thing. Right. सौरभ जी, आप हैं?
जय जनरल सौरभ जी। सौरभ जी, मैंने आपको मैसेज किया है। कैन वी स्टार्ट? हेलो जय जैन। हेलो, आवाज आ रही मेरी आप लोगों को? जी सौरभ जी। आवाज आ रही है सौरभ जी? मैंने आपको ही कॉल किया था। अच्छा अच्छा, आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ सर, हाँ सर। गुड। करें, स्टार्ट करें क्लास। हाँ सर, मंगलाचरण लिख। मंगलाचरण ले लिया क्या कुंदन जी? नहीं सर जी, बस ले रहे हैं। हाँ, ले लीजिए। वन्दितु सवसिद्धे ध्रुवमचलं गतिं तपते गच्छामि समये पाहुर्निनमो सुदकेवम् नमः साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्तस्वभावभावाय सर्वभावान्तरचिते। अब जी हम टीका पे थे 23 आई थिंक। हाँ, यहाँ पे थे हम। हाँ, हमारी चर्चा इन पे हो चुकी थी गाथाओं पर। 22 नंबर का कलर्स हमने स्टार्ट किया था और ये पढ़ भी लिया था। त्यज्यतु Correct. जगदादीनां मोहमाजन्म लीनं रसयतु रसिकानां रोचनं ज्ञानमुच्यते। एह कथमपि नात्मात्मना साकमेकः किल किलयति काले क्वापि तादात्मवृत्तिम्। ये हमने लास्ट टाइम श्लोक लिया था, जो कि आचार्य अमृतचंद ने लिखा है इसमें कलश रूप में। So the main subject matter of Samaysar in our class we are discussing. Acharya is just going to tell, or he is having intention to tell about this, the separate existence of soul and body. So regarding that, he has presented some example of Idhan and Agni, and in last two sessions we discussed in detail, and I hope all you have understood that as well. Now we are going to take Gatha number 23, 24 and 25. जिसमें 22 नंबर के कलश में हमने ये देखा था। मैं आपको सब्जेक्ट रिवाइज करा देता हूँ। अनादिकाल से आज तक हमने जो मोह के कारण से हम लोग दुखी रहे हैं। संसार में भटकना हमारा मोह के कारण से हो रहा है। तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि भाई अब आप उस मोह को छोड़ दो। So the main barrier in our permanent peace is moh. It means attachment.
Now Acharya is just instructing to us that if you want to have, or if you are having intention to have the permanent peace, you must get rid of this attachment and aversion. Then what the next we must do? So Acharya is saying here that you must utilize the knowledge within. क्योंकि इस आत्मा में इस आत्मा को लोक में किसी भी परिस्थिति में पर के साथ संबंध नहीं हो सकता. So it is impossible to have the permanent connection or unite as one with other substance. Soul is alone since time immortal. Right now also we are alone, though we can see that we are having just mixed with body. But this is not the permanent connection what we are having. Once we get salvation, so definitely our soul will be separated from our body. It means we are separated right now. And Acharya is also saying here that he has used a word Atma Anatma. आत्मा का संबंध कभी अनात्मा के साथ नहीं हो सकता. इट मीन्स आत्मा कभी एक में एक नहीं हो सकता पर के साथ, अनात्मा के साथ. तो इस तरह से ये कलश लिया है और इसके बाद गाथाएं आगे की आचार्य बोल रहे हैं, तो निकालिए इन गाथा को. सर ये एक प्रश्न, एक वन क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पे कि अगर जैसे हम 2021 जो गाथा को पढ़कर हम अज्ञानी को, मतलब ज्ञान और अज्ञानी को समझ गए और सब, मतलब वास्तव में एवरीथिंग इज सेपरेट, सोल इज सेपरेट, द बॉडी इज सेपरेट. व्हेन वी अंडरस्टैंड दैट, एंड इज देयर अ नीड फॉर अस टू avoid the attachment, or when you know this, the attachment automatically goes away? What I'm trying to understand is the sequence. You get this knowledge, become kind of a knowledgeable person, a samyak drasti, and then the attachment automatically goes away, or the attachment has to go away separately from this whole process? Yeah, good question, Kunjan ji. So you know, both are the same thing. If I'm just talking in Upadeshatmak language, so I will tell you, or Acharya will tell you, that forcefully you will have to stop the attachment. And if I just talk in the way of positive manner, then I will tell you that you must study, know the Adhyatma, you must realize your soul, then automatically your attachment and aversion kind of feeling will go away. So both are same thing. If anyone teaching in a Upadeshatmak Shali, Upadeshatmak, it means he is just trying to motivate you for Purusharth. And if he's just talking from the point of view of positive mind, positive Shali, it means the realization of soul and the study of Adhyatma can automatically just diminish this attachment. तो कुंजन जी, दोनों एक ही बात है. हम उपदेशात्मक शैली में उसको ये बोलेंगे कि हमें राग को दूर करना चाहिए, और आध्यात्मिक शैली में हम ये बोलेंगे कि जब हम आत्मा का अनुभव करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारा राग दूर हो जाता है. ठीक है सौरभ जी. The reason also, again, in other religion or certain times, people will try to just forcefully tell you, hey, get rid of attachment, don't do parigraha. But जब तक हम उसे, मतलब आत्मा से अलग ना समझेंगे, तब तक वो होना ही नहीं है. ऐसा मानना ठीक होगा क्या? हाँ बिल्कुल. आप देखिए, पता है क्या होता है, एक थॉट होती है जिसे हम श्रद्धान भी बोलते हैं. इंग्लिश तो श्रद्धान का कोई ऐसा शब्द नहीं. धान से तात्पर्य क्या है कि एक बार आपको ये श्रद्धान हुआ कि वॉट एवर जिनेन्द्र हैज जस्ट टोल्ड अस, and Jinandev has told us that the body and soul is separated. They are not one. They are not united. They cannot be one anyhow, any way, and any time. एक बार हमें ये श्रद्धान हुआ, then we will try to realize our soul. तो ये बहुत नेचुरल है कि जब ये व्यक्ति परमानेंट पीस के मार्ग पर चलेगा, ऑटोमेटिकली उसका अटैचमेंट दूर होगा. सो ये भी रास्ता है. लेकिन इनिशियली कोई जब आता है अध्यात्म में, तो उसे ऐसी भाषा में बात जाता है.
आप सब लोग हैं, आप सबके बच्चे अभी थोड़े-थोड़े बड़े हो गए होंगे, लेकिन आपको याद होगा जब छोटे रहते हैं बच्चे तो वो स्कूल नहीं जाते हैं, है ना? तो उनको फ़ोर्सफुली वहाँ स्कूल ले जाना पड़ता है। काफ़ी शुरू में स्टार्टिंग में तो ऐसा भी होता है 2, 4, 5, 10 दिन कि हमें वहाँ खड़ा रहना पड़ता है ताकि वो लौट के ना जाए, रोए ना। तो वो उसे पहले स्कूल देने का उपदेश देना पड़ता है, स्कूल जाने का। लेकिन आफ्टर 2 और 3 इयर्स ऐसा हो जाता है कि वो बोलता है कि I'm not going with you anywhere because there is a school and I have lots of work to do. तो यहाँ भी कुंजन जी ऐसा ही अप्लाई होगा। रही बात दूसरी जो there are other religion which talks about this attachment and aversion, उनका वहाँ जो है ना अलग है। वो क्या बोलते हैं कि सब जगह से अपनी राग को हटा के प्रभु भक्ति में अपना मन लगाओ, वही कल्याण करेंगे। तो उनने सब जगह से तो राग हटाने का बोला, परिग्रह से राग हटाओ, शरीर से राग हटाओ, रिश्तों से मोह हटाओ। परंतु यहाँ जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जिनागम में तो जिनदेव से भी राग हटाएं, अर्थात प्रशस्त राग भी आत्मा की अनुभूति में बाधक है, ये कहने की सामर्थ्य अगर किसी में है तो वो केवल जिन मार्ग में है। जिन मार्ग के अतिरिक्त इस बात को इतनी ताकत से, इतनी फोर्सफुली, इतने कॉन्फिडेंटली कहने की ताकत किसी में नहीं है। So, Kunjan ji, you have asked a very good question, and I think I have clarified. हाँ सर। चलिए अब हम गाथाएं पढ़ते हैं। और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। कुंजन जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था। ये पूरा जो प्रकरण है अभी ये भेद विज्ञान वाला चल रहा है, पूरा समय सारी मेन भेद विज्ञान वाला है। तो आचार्य अलग-अलग तरीके से भेद विज्ञान को समझा रहे हैं कि किस तरह से भेद विज्ञान करना चाहिए, किस तरह से आत्मा और शरीर अलग-अलग हैं। चलिए अब मैं यहाँ से 23 नंबर की गाथा पढ़ता हूँ और फिर आप लोग पढ़िए। अण्णाणमोहितमदि मध्यमिणं भणति पोग्गलं दब्बं बद्धं बद्धं च तः जीवो बहुभाव संयुक्तो। हाँ पढ़िए एक साथ सब लोग, फिर एक एक करके पढ़ाऊंगा मैं। मोहितमदि मज्जमीणं बनति पोगलं दवं बद्धं चतः जीवो बहुभाव भावसंयुतो। देखिए मैं यहाँ से एक बार फिर से पढ़ता हूँ, फिर मैं आप लोगों से 1 बाय 1 पूछूंगा। अण्णाण मोहितमति मध्यमिणं भणति पोग्गलं दब्बं बद्धं बद्धं चतः जीवो बहुभाव संयुक्तो। अण्णाणमोहितमदि मध्यमिणं भणति पोग्गलं दव्वं बद्धं बद्धं च तः जीवो बहुभाव संयुक्तो। हाँ पढ़िए प्रीतेश जी, आप पढ़िए प्राकृत की गाथा। जी स्वरूप जी। अन्ना ने वही से पढ़ो ना। हाँ पहली 23 नंबर की गाथा। अण्णाण मोहितमदि मध्यमीणं भणति पुग्गलं दौवं बद्धमबद्धं च तः जीवो बहुभाव संयुक्तो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया पढ़ी। आगे आप पढ़िए सौरभ जी। जी सौरभ जी। अण्णाण मोहितमदि मध्यमिडं भणति पोग्गलं दव्वं बद्धं बद्धं च तः जीवो बहुभाव संयुक्तो। हाँ एकदम सही पढ़ी आपने भी। कुंजन जी आप पढ़िए। हाँ सर। अन्नानमोहितमदि मज्जमीणं भणति पोग्गलं दवं बद्धं बद्धं च तः जीवो बहुभाव संयुक्तो। बीजल जी आप पढ़िए। अण्णानमोहितमदि मज्जमिणं भणति पोग्गलं दवं
बद्धम बद्धम चतः जीवो बहुभाव संजुतो। वेरी गुड। प्रियंका जी, आप पढ़ पाएंगे गाथा 23 नंबर की? हाँ, मिशी आप पढ़ेंगे? हाँ, सॉरी सौरभ जी, मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आता। Okay, it is not Hindi, it is Prakrit language. It is a different language. We are dealing with 3 and 4 languages: Prakrit, Sanskrit, Hindi, and English. So our class is अच्छा। just a having multi-dimensional language. Okay, good. कुंजन जी, इसका वो रोमन में है क्या वो टाइपोग्राफी? I'll try to find it again if there is one. मैंने अभी तक हाँ, देखा तो नहीं क्या सर। मिशी जी एटलीस्ट उससे तो पढ़ सकते हैं हम हाँ सौरभ जी, होगा ही। मैंने देखा भी है कहीं पे, सच्ची में मैंने एक यहाँ पे मंगवाया था, लेकिन अभी तक आई डिडंट नो वो लोग ने। तो सौरभ जी, एक पता है वो उन्होंने कन्वर्ट करके बुक, मतलब रीड म्यूजिकल बुक बनाई थी, मतलब जिसमें मतलब पढ़ सकते हैं, ऐसा था। आई डोंट नो। आई फाइंड आउट। नहीं, कोई बात नहीं। वो तो क्या, मेरा जो एप्पल में अपन ने ऐप बनाया था ना समय सार का, उसमें मैंने इंग्लिश का नीचे डाला था ये ट्रांसलिटरेशन। तो वो क्या ऐप अभी बंद चल रहा है वो। मैं फिर भी देख के ना अभी देख लीजिए, अगर मिले तो मिशी जी को हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम ठीक से है, हम मैं ध्यान रखेंगे, स्पेशली मिशी जी के लिए हम लोग वो रोमन वाला रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़िया। आप लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट गाथा मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से, आप लोग ध्यान से सुनिए। सवर्णहुणान दिट्ठो जीवो उब ओग लक्षणो नित्यम कहसो पोगल दव्वी भूदो जम भणसी मध्यमिणम। फिर से पढ़ रहा हूं मैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। सवर्णहुणान दिट्ठो जीवो उब ओग लक्षणो नित्यम कहसो पोगल दव्वी भूदम जम भणसी मध्यमिणम। हाँ, पढ़िए सौरभ जी, आप पढ़िए ये 24 नंबर की गाथा। सवर्णहुणान दिट्ठो जीवो उब ओग लक्षणो नित्यम कहसो पोगल दव्वी भूदो जम भणसी मझमिडम। बढ़िया, एकदम सही पढ़िए। हाँ, प्रतेश जी आप पढ़िए। सॉरी सर जी, कहाँ से पढ़ूं? 24 24 से मुझे पढ़ना है। 24। सवर्णुनाणं दिट्ठो जीवो उव ओग लक्षणो नित्यम कहसो पोगल दव्वि भूदो जम भणसी मध्यमीणम। बहुत बढ़िया, आपने भी सही पढ़ी। नेक्स्ट कुंजन जी आप पढ़िए। सवर्णुनान दिट्ठो जीवो उव ओगल लक्षणो निजम कहसो पोगल दवि बुद्धो जम भणसी मध्यमणम। ओके, बीजल जी आप पढ़िए। नवहुनान दिट्ठो जीवो उव ओग लक्षणो नित्यम कहसो पोगल दव्वी भूतो जम्भणसी मध्यमीनम। ओके, कौन बच गया अभी? हाँ, आगे की गाथा पढ़ता हूँ मैं यहाँ से 25 नंबर की। जदिसो पोगल दव्वी भूदम जीवत मागदम इदरम तो सक्को बत्तुम जे मध्यमिणम पोगलम दब्बम। फिर से पढ़ता हूं मैं। जदिसो पोगल दव्वी भूदो जीवत मागदम इदरम तो सक्को बत्तुम जे मध्यमिणम पोगलम दव्वम।
So, Mishiji, you know what we are just reading here in the form of Gatha. So it is the world's most ancient language. It is called Prakrit. है ना? ये हिंदी नहीं है, संस्कृत नहीं है, संस्कृत से भी पहले की कोई भाषा है, तो वो ये है, and it is older more than 2,500 years. Wow, thank you. Okay. तो जदिसो पोगल दव्वी भूदो जीवत मागदम इदरम तो सक्को वत्तुम जे मज्जमिणम पोगलम तप्प. पढ़िए प्रीतेश जी, आप पढ़िए. हाँ प्रीतेश जी, 25 नंबर की गाथा पढ़ना. जी सौरभ जी. जदिसो पोगल दव्विभूतो जीवत्तमागदम इदरम तो सक्को वत्तुम जे मज्जमीणम पोगलम दव्वम. ओके, सौरभ जी आप पढ़िए. जदि सोपोगल दव्वी भूदो जीवत्यमागदम विदुरम तो सक्को वत्तुम जे मज्जमिडम पोगलम दव्वम. ओके, कुंदन जी. जदिसोपोगलदवि भूतो जीवत्तमागतम् इतरं तोषको वन्तु जे मज्जमिडं पोगलं दव्वम्. ओके, बिजल जी आप पढ़िए. जदि सोपोगलदव्वि भूदो जीवत्तमागदम् इदरं तो सक्को वट्टुं जे मज्जमिनं पोगलं दव्वम्. ओके, गुड. अब देखिए, अब हम इसको समझना चालू करते हैं कि अभी हम लोगों ने कलश में ये देखा था कि किस तरह से पर के साथ एकत्व के मोह को तोड़ना चाहिए. इट मीन्स हमें अपने अटैचमेंट को तोड़ना चाहिए और अपने में अपनापन स्थापित करना चाहिए. अब इसी बात को आचार्य कुंद 23, 24 और 25, 23, 24 एंड 25 नंबर की गाथा के माध्यम से ही जस्ट पुटिंग सम लॉजिक, तर्क युक्ति, लॉजिकली हमें यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से जीव और पुद्गल दोनों अलग अलग है. तो 23 नंबर की गाथा का हिंदी अनुवाद ऐसा होगा: अज्ञान मोहित मति बहुविधि भाव से संयुक्त जीव अबद्ध एवं बद्ध पुद्गल द्रव्य को अपना कहे. यहाँ लक्षण बता रहे हैं कि self diluted with the wrong knowledge and the influenced by the wrong belief and patience declares the physical objects like the ones intimately bounded to him and the one not so bounded to him. तो यहाँ कह रहे हैं कि भाई ये वो ऐसा मानता है कि ये सब चीजें मेरी हैं, अज्ञान से मोहित. अज्ञान से मोहित का मतलब यह है कि there is a person who doesn't know the reality of Swadravya and Paradravya. He is not studying anything. He is not just trying to know the real Vastu Vyavastha. तो कह रहे हैं अज्ञान से जिसकी मति मोहित है. अज्ञान से मति मोहित का मतलब ये है कि ये पढ़ तो रहा नहीं है, स्वाध्याय तो कर रहा नहीं है, तो इसे फिर क्या होता है, एक नेचुरल चीज है कि इसे बाहर की वस्तुओं से राग द्वेष होगा. हम देखते ना कि भाई खाली दिमाग शैतान का घर, एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है. तो यहाँ भी कह रहे हैं वो अज्ञान से, अज्ञानमय जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति जिसके पास ज्ञान नहीं है, इट मीन्स ही इज नॉट स्टडिंग, ही इज नॉट ट्राइंग टू नो द रियल वस्तु व्यवस्था, उसे यहाँ कहा है अज्ञान से मोहित है.
तो मोह रहेगा। आप देखेंगे सारे संसार में भले वो मूवीज हो, कोई सीरियल हो या डॉक्यूमेंट्री हो, वो सारे की सारी चीजें जो बताई जाती हैं, तो सबका फोकस क्या रहता है? कीप योर फैमिली हैप्पी, कीप योर कंट्री हैप्पी एंड प्रॉस्परस। एंड आप भी कब खुश रहेंगे? जब आपके पास बड़ा मकान होगा, व्हेन यू विल हैव लॉट्स ऑफ वेल्थ, रिलेटिव्स, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो वो कह रहे हैं वो अज्ञान से मोहित हैं वो लोग। अज्ञानी है ना, उनको पता नहीं है कि कोई भी वस्तु हमें सदा काल तक सुख नहीं दे सकती। इसलिए मुझे कोई ऐसा मार्ग खोजना होगा। आई विल हैव टू ट्राई टू सर्च दैट वे which can just give me permanent peace and pleasure. Though this person is not just doing swadhyaya, though this person is not with the satsangati, that's why he is ignorant. And due to this that ignorance, he is bounded with attachment. He is bounded with just other things which are not the integral part of that soul. तो फिर उसके कारण से क्या होता है कि अनेक मोह राग द्वेष आदि भाव से युक्त हो जाता है। जो जीव अज्ञानी है वो मोहित है, और वो फिर उसको मोह राग द्वेष आदि भाव युक्त हो जाता है। और ऐसा जो जीव है वो कहता है कि शरीर आदि बद्ध और धन धान्य आदि अबद्ध पुद्गल द्रव्य मेरे हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, अभी हम लोगों ने जो गाथा पढ़ी उसमें हमने 23 नंबर की गाथा में 2 शब्द पढ़े हमने, बद्धम बद्धम चतहा। तो वो बद्धम बद्धम नहीं है, वो है बद्धम अबद्धम। तो यहाँ कह रहे हैं कि जिसकी मति अज्ञान से मोहित है और जो मोह राग द्वेष आदि अनेक भावों से युक्त है, ऐसा जीव कहता है कि ये शरीर आदि बद्ध और धन धान्य आदि अबद्ध पुद्गल द्रव्य मेरे हैं। है ना? मतलब बद्ध मतलब बंधा हुआ शरीर और जीव, और अबद्ध जो धन धान्य आदि हैं वो अबद्ध पुद्गल द्रव्य मेरे हैं। तो एक ऐसे जीव की बात चल रही है जो कि अज्ञान से मोहित है, और उस अज्ञान के कारण से वो शरीर आदि बद्ध इसलिए कहा क्योंकि शरीर और आत्मा हमें एक ही जगह पर दिखाई देता है। इट सीम्स दैट दे आर यूनाइटेड, इट मीन्स दे आर बद्ध। एंड धन धान्य आदि इट मीन्स वेल्थ, हाउस, सर्वेंट एटसेट्रा आर अबद्ध। धन धान्य आदि जो है वो अबद्ध पुद्गल द्रव्य हैं, वो मेरे हैं, ऐसा वो बोलता है। फिर नेक्स्ट जो गाथा है इसमें 24 नंबर की, उसमें कह रहे हैं कि सर्वज्ञ ने देखा सदा उपयोग लक्षण जीव यह, पुद्गलमयी हो किस तरह तू अपना कहे। तो यहाँ कह रहे हैं कि भाई सर्वज्ञ भगवान ने क्या कहा है, what the Lord has just delivered in his दिव्य ध्वनि। क्या कहा है उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान में, दिव्य ध्वनि के द्वारा, कि जो सदा उपयोग लक्षण वाला जीव है, जीव का लक्षण क्या है? उपयोग, है ना? उपयोग मतलब चैतन्यमय है, ज्ञानमय है, वह पुद्गल द्रव्य रूप कैसे हो सकता है जिसके कारण तू कहता है कि पुद्गल द्रव्य मेरा है। आचार्य देव लॉजिक दे रहे हैं यहाँ कि भाई एक बात बताओ मुझे, जीव का लक्षण तो ज्ञान है, चैतन्य है, उपयोग लक्षण है, then how can you say that these पुद्गल द्रव्य are mine? फिर तीसरी नंबर की गाथा में बात बोलते हैं, यदि जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्यमय हो जाए, पुद्गल द्रव्य जीवत्व को प्राप्त करे, तो तू यह कह सकता है कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है। अब तीसरी गाथा में लॉजिक दे रहे हैं कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्यमय और पुद्गल भी जीव हो जाए, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ आपको। जैसे आप लोग अपने बचपन में भी सब टीवी आदि तो चलती थी, और अभी थोड़ी एडवांस आ गई है, लेकिन हम लोग भी कार्टून, मुझे याद है टॉम एंड जेरी करके आता था उस समय, मैं बहुत छोटा था, और भी दूसरे कार्टून आते थे, लिमिटेड थे लेकिन आते थे। तो उन कार्टून में ऐसा बताते थे, वो टेबल जो है ना, टेबल बात कर रही है, उसकी आंखें हैं, वो बात करती है, वो है ना। तो वो टेबल तो पुद्गल ऑब्जेक्ट है ना, वो तो उसमें जीव कैसे हो सकता है। लेकिन उन्होंने उसमें कल्पना बताई कि पुद्गल भी जीव हो गया।
तो यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्यमय हो जाए, तो इसका एग्जाम्पल कैसा है कि जैसे अभी हम लोग जो जी रहे हैं, हम लोग मनुष्य भाव में हैं, हम में से कुछ मेल हैं, कुछ फीमेल हैं। तो अगर वो हमारा आत्मा पुद्गल द्रव्यमय हो जाए, मतलब अब हम कभी मरेंगे ही नहीं। अगर वो आत्मा पुद्गल द्रव्यमय हो जाए, इफ इट हैज मिक्स्ड विद द जीव एंड पुद्गल, देन वी विल नेवर डाई, हम कभी मरेंगे ही नहीं। दूसरा, केवल जीव हो जाए, मतलब वो जीव होके बोलने लगे, हमसे बात करने लगे, हमारे साथ चलने लगे, तो तू कह सकता है पुद्गल द्रव्य मेरा है, जबकि ऐसा तो होता ही नहीं है ना। मैं तीनों गाथाओं का एक सारांश जो है वो लिखा है, यहाँ बताता हूँ मैं आपको। The self diluted with wrong knowledge and influenced by wrong belief and patience declares that physical objects like the one intimately bound to him and the one not so bound to him belong to him. The omniscient Lord has declared that consciousness is soul distinctive characteristics. How can such an entity be regarded as physical matter? How can one say that a particular physical matter belongs to him? If it were possible for the soul to become physical matter and for the physical matter to become soul, then only it would have been right to say that particular physical object belonged to the soul. ये मैंने लिखा हुआ पढ़ के बताया है आपको इंग्लिश में। तो ये इन तीन गाथाओं का एक सारांश है, क्योंकि इसकी अभी और डिटेल में टीका आचार्य अमरचंद ने की है, and he had just put some example of Spatik Mani, and so we are going to take this example. I will explain about this. So the example of Spatik Mani is very famous, very famous to explain this soul and Pudgal. तो अभी जो हमने तीन गाथाएं पढ़ी हैं, इन गाथाओं का ये एक सारांश मैंने बताया है। आप लोग बताइए, इसमें से कौन बता सकता है तीन गाथाएं मैंने जो बताई हैं, उनका मैंने आपको सारांश बताया है, गाथार्थ बताया है। कोई बता सकता है या मैं ही बोलूं? किसको बताना है? यहाँ पे सिर्फ अगेन मैं ऐसे समझता हूँ कि जीव और अजीव को हम अलग कर कर भी मतलब पुद्गल से भी हम अपने जीव में भी शरीर और आत्मा को अलग करने की बात कही गई है, उसको मैं ऐसे समझ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, बात कही तो है, लेकिन हमें बिना लॉजिक के समझ में नहीं आती ना, इसलिए आचार्य यहाँ लॉजिक दे रहे हैं कि भाई आप जीव और शरीर अलग अलग हैं, लेकिन वो कैसे, तो वो यहाँ लॉजिक दे रहे हैं। तो तीन गाथाओं के माध्यम से यहाँ बताया है। हाँ, किसी को समझ में आया? यहाँ नहीं आया हो तो हम उसको और आगे समझेंगे। डोंट वरी, आई एम नॉट सेइंग यू यहाँ पे दैट एक बात, वन थिंग वी शुड ऐड इज उपयोग लक्षण को जो कहा गया ना, जो जीव है, we should that highlight that out. So I think at least for Mishi it would be good to understand. ओके, ठीक है, ले लेंगे। अभी पहले यहाँ जो कहा है अपन, उसको कौन बता सकता है? बताइए आप लोगों में से। प्रतेश जी आप बताइए। हाँ सौरभ जी आप बताइए, ये तीन गाथाओं का जो हमने पढ़ा है। जी सौरभ जी, तो जी तीन गाथाएं हैं। फर्स्ट गाथा में ये रेज किया है कि हमारी बात की है, संसारी जीवों की बात करी है कि हमारी बुद्धि में मोह है, राग है, द्वेष है, अज्ञान है हमारे में। तो हम ऐसा बिकॉज ऑफ मोह और अज्ञान हम ये सोचते हैं कि जो जो जीव है, जो हम हैं, हम बद्ध और अबद्ध, बेसिकली शरीर से बद्ध हैं, जो बंधे हुए हैं, और जो धन धान हैं, जो अबद्ध है, पुद्गल है, ये सब मेरे हैं। मतलब जीव और पुद्गल पे एक करके मानते हैं हम। बद्ध भी मैं हूँ और अबद्ध भी मैं हूँ, ऐसा मान लेते हैं। तो आचार्य ने क्वेश्चन रेज किया सेकंड गाथा में कि क्योंकि जीव का तो लक्षण उपयोग लक्षण है और ये पुद्गल का लक्षण नहीं है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जीव पुद्गल रूप हो जाए, कि लक्षण ही अलग अलग है।
तो फिर थर्ड गाथा में उसको सॉल्व कर रहे हैं कि ये तभी हो सकता है ऐसा पॉसिबल जब जीव पुद्गलमय हो जाए और पुद्गल द्रव्य जीवमय हो जाए। अगर ऐसे पॉसिबिलिटी कभी हो तो आप कह सकते हो कि हाँ, अब जीव कह सकता है कि हाँ, पुद्गल मेरा है, अदरवाइज नहीं कह सकता। और प्रैक्टिकली ऐसा कभी हो भी सकता है कि जीव पुद्गल में हो जाए, पुद्गल द्रव्य जीव में हो जाए। तो बेसिकली इज ट्राइंग टू आर्ग्यू बाय दिस लॉजिक कि कभी भी जीव नहीं कह सकता कि पुद्गल मेरा है। बहुत बढ़िया, एकदम सही बताया सौरभ जी ने। और कौन बताएगा? आप लोग मन से बता दीजिए, मैं नाम नहीं लेता हूँ। हाँ कुंदन जी आप बताइए। सर जी, फर्स्ट गाथा में सबसे पहले तो अज्ञान मतलब अज्ञान वाले जो जीव होते हैं वो दोनों शरीर और आत्मा दोनों को एक मानते हैं, मतलब वो दोनों पुद्गल द्रव्य भी खुद को मानता है। फिर सेकंड में गाथा पे आचार्य जी ने कहा है कि सर्वज्ञ ज्ञान के जो उसमें ही ये पता चलता है कि उपयोग जीव का लक्षण है और उस लक्षण से ही हम जीव को मान सकते हैं, और वो लक्षण पुद्गल में कैसे होगा, मतलब पुद्गल में तो उपयोग का लक्षण ही नहीं है और इस तरह से हम अजीव को जान सकेंगे। और तीसरे में फिर ऐसा कहा गया है कि अगर जीव पुद्गल हो जाए तो फिर उसे मतलब उसके जो लक्षण है वो भी मतलब या फिर वो लक्षण नहीं होंगे या फिर वो पुद्गल मतलब जीव पुद्गल नहीं हो सकता है, वो दोनों में से किसको मानेंगे आप? तो जो सर्वज्ञ ज्ञानी ने कहा है या सर्वज्ञ भगवान ने हमें कहा है कि उपयोग जीव का ही लक्षण है, उससे हम दोनों को मतलब सेपरेट आउट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि जीव अजीव अलग है और शरीर आत्मा से अलग है। तो इसमें बताना क्या चाहते हैं मेनली? आचार्य क्या बताना चाहते हैं? सर जी ये आई थिंक मतलब मेरे हिसाब से तो यहाँ के मोह और एक पहले तो आत्मा और शरीर अलग, और फिर जो जिस चीजों से हमारा मोह है उसे छोड़ने के लिए कह रहे हैं ताकि हम पुद्गल द्रव्यों में अपने अपने मतलब अपने पुरुषार्थ को न लगाए और अपनी आत्मा सच्ची जो प्योर आत्मा है उसके मतलब उसमें अपना उपयोग लगाए और उसे ही जानने और पहचान के भेद विज्ञान करने की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है। मतलब ये बता रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हम रहते पुद्गल द्रव्य के साथ है ना, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि भाई यही मेरा है। अच्छा, हम ये देखते भी हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो इस दुनिया से विदा होते जा रहे हैं, उनकी आत्मा कहीं और है और अब उनका शरीर यही है। उसके बाद भी हमें ऐसे ही लगता रहता है कि हम तो इन सारी वस्तुओं में रमे हैं, ये वस्तुएं हमारी हैं। तो कोई ये ऐसा नहीं है कि इट इज हैपनिंग इन प्रेजेंट सिनेरियो, प्रेजेंट टाइम, बट इट इज हैपनिंग सिंस टाइम इमॉर्टल। आचार्य कुंद ने आज से 2000 साल पहले जो समय सार ग्रंथ लिखा है, तो उस समय भी लोग ऐसे ही थे जो कि शरीर आदि बद्ध और धन धान्य आदि अबद्ध पुद्गल द्रव्यों को अपना बोलते। तो वो आचार्य यहाँ ये समझाना चाहते हैं कि भाई यू मस्ट जस्ट रिमूव योर delusion, you must come out from that thought which is not real. So thought is that the body and soul is one. ये बोल रहे हैं वो अज्ञान की आपकी जो मान्यता है ना, उसे आप छोड़िए। मैंने लास्ट टाइम बताया था आप लोगों को कि मैक्सिमम पीपल इन दिस world, I'm not talking about this adhyatma point of view, but I'm just talking about in general. Maximum people of this world, they're considering themselves as intelligent and they're considering themselves as a wise, but they are not, because they do not know the real philosophy of life. They do not know the real philosophy of earning money.
They do not know the real sense of just living in a social life, but they are considering themselves as very intelligent and wise person. There are a few person who are intelligent, who are wise, and they are on the top of their success. So success, it doesn't mean that they are having lots of money, but they are having each and everything. What we just call in this world is success, name, fame and money. हम अगर इसे अध्यात्म में अप्लाई करते हैं तो यहाँ भी आचार्य यही कह रहे हैं कि भाई मैक्सिमम पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड दे आर कंसिडरिंग देमसेल्फ एज द कॉम्बिनेशन ऑफ पुद्गल एंड जीव, और उसको एक मान रहे हैं। भाई मैं पुद्गल जीव हूँ ये भी मान रहा हूँ, और मैं एक हूँ, ये मेरे हैं, दीज आर माइंड, मैं इस रूप हूँ मैं। फिर आचार्य ने कहा कि भाई आप तो उपयोग लक्षण वाले हैं ना। उपयोग लक्षण वाले मतलब कि वो देखने जानने का स्वभाव है मेरा। तो उपयोग लक्षण का मतलब होता है देखने जानने का जो स्वभाव है मेरा तो वो लक्षण है। मैं कोई पुद्गल तो हो नहीं सकता। पुद्गल का लक्षण क्या है? पुद्गल का लक्षण देखना जानना नहीं है। हम कभी बस से बात नहीं कर सकते, हम कभी पेन से बात नहीं कर सकते। ये अलग बात है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में अभी जैसे एआई से रोबोट बनने लगे, या अभी जो एआई आया है सिस्टम पे वो उससे बात करने लगे हैं। वो क्या करें, वो अलग रह रहे हैं, कोई उनके पास आसपास है नहीं बात करने के लिए, तो फिर वो उससे बात करते हैं। लेकिन इसके बाद भी वो एआई भी तो पुद्गल ही है ना। रोबोट बनाया वो भी पुद्गल ही तो है ना। क्या कहते हैं कि पुद्गल रहेगा हमेशा, सदैव पुद्गल रहेगा, और जीव रहेगा। जीव का जो लक्षण है वो उपयोग है, अर्थात ज्ञान दर्शनमय है। वो जानना देखना उसका काम है। उपयोग लक्षण का मतलब होता है जानना देखना उसका काम है। तो वो अपना काम करे और इसे वैसा ही मानना चाहिए, लेकिन ये वैसा नहीं मानता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि भाई पुद्गल द्रव्य तुम्हारा कैसे हो सकता है। फिर थर्ड लॉजिक दिया कि भाई अगर पुद्गल जीव हो जाए और जीव पुद्गल हो जाए तो आप कह सकते हैं कि ये पुद्गल द्रव्य मेरा है, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इस तरह से इन गाथाओं में कहा है। और मतलब सिंपल में अगर वर्ड में कहूँ तो वो ये कह रहे हैं कि ये कहना ठीक नहीं है कि शरीर आदि और धन धान्य आदि पदार्थ मेरे हैं। तो वो हमारी जो मान्यता है, what the notion we are having regarding body and the other element related to body. So Acharya clearly states here that this notion is not correct. It is not right what you are thinking, what you are considering, what you are having faith in that. शरीर और धन धान्य आदि आपके नहीं है, आपको ऐसा मानना चाहिए। अब यहाँ आचार्य अमृतचंद ने टीका लिखी इस पे। तो आचार्य कुंकुन ने तो 3 गाथाओं के माध्यम से यहाँ समझा दिया। Hence Acharya Amritchand is writing tika, or just further he just explaining in detail by submitting some example or one example to just clarify this topic, or these gatha 20, 22, 23, 24। एक स्फटिक मणि का एग्जाम्पल दे रहे हैं। स्फटिक मणि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई डोंट नो, क्या नाम है स्फटिक मणि को, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? किसी को पता है? Spatik money. It's a just rare diamond. रेयर डायमंड बोलते हैं, क्रिस्टल बोलते हैं ना, क्रिस्टल कुछ ऐसे बोलते हैं। एग्जैक्टली क्या उसका इंग्लिश है मुझे नहीं पता। तो यहाँ स्फटिक मणि का एग्जांपल दिया। समझ में आता है ना स्फटिक मणि? सबको देखा है आप लोगों ने स्फटिक मणि देखा है कभी? अमी जी आपने देखा है स्फटिक मणि? जानते हैं? हाँ। देखिए हमारी काफी सारे मंदिरों में मूर्तियां, प्रतिमा जी होती है स्फटिक मणि से बनी हुई। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपने देखा है ना, तो यहाँ जो आचार्य जस्ट ही इज ट्राइंग टू
submit a very good example of Sphatic Mani, you will just clearly will be able to understand it. तो यहाँ करें कि आप अगर स्फटिक मणि को जानते हैं ना, तो फिर आपको एग्जाम्पल समझ में आएगा। तो मैं ऐसा समझता हूँ आप सबने स्फटिक मणि देखी है। अब यहाँ स्फटिक मणि सर जी हाँ क्रिस्टल ही कहते हैं, ऐसा ऐसा मैंने पढ़ा। अच्छा, क्रिस्टली बोलते हैं इसको। ओके। तो स्फटिक मणि का मैं आपको स्वभाव बताता हूँ। एकदम पानी जैसा एकदम क्लियर होता है वो, है ना, ट्रांसपेरेंट। वैसे तो स्टोन है वो, लेकिन जमीन के बहुत नीचे बहुत बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर वो स्टोन जो है ना वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। महंगा आता है, सस्ता नहीं आता है। तो हमारे मतलब जैन मंदिरों में तो उसका जो उपयोग है वो प्रतिमा जी बनाने में लेते हैं। अब उसका नेचर कैसा है सुन लीजिए आप। वो पानी जैसा ट्रांसपेरेंट है, लेकिन अगर आपने उसके नीचे कोई लाल कपड़ा रख दिया तो वो लाल दिखाई देने लगता है। अगर उसके नीचे आपने एक पीली बिंदी लगा दी तो वो प्रतिमा ना पीली दिखाई देने लगती। और अगर आपने उसके नीचे कोई काली बिंदी लगा दी, काला कपड़ा रख दिया, तो वो प्रतिमा काली दिखाई देने लगी। ये उसकी विशेषता है। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ ये है कि वो प्रतिमा के नीचे मैंने काला कपड़ा रखा और वो काली दिखाई दे रही है, तो एक्चुअल में काली हुई कि नहीं हुई? वो जो मैंने प्रतिमा के नीचे कपड़ा रखा, मैंने मतलब किसी ने भी, तो वो काली दिखाई देने लगी, तो वो काली हुई कि नहीं हुई? बीजल जी आप बताइए। हाँ सौरभ जी बोलिए, काली हुई कि नहीं हुई वो? काली नहीं हुई सौरभ जी, दिख रही काली है लेकिन दिख लेकिन तो रही है ना। हाँ हम्म, अभी भी है तो वो तो ट्रांसपेरेंट और प्योर स्फटिक मणि की प्रतिमा। हम्म, तो कुंदन जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो काली नहीं, काली दिख रही है लेकिन काली नहीं है? सौरभ जी वो एक सिर्फ जिसकी उसकी प्रॉपर्टी है जो स्फटिक मणि में, मतलब वो परछाई में, मतलब वो जिस चीज पे रखी गई उसकी परछाई से वो दिखता है। पर उसमें मतलब ऐसे इसमें ऐसे माने कि इट डजंट गो विद इन इट इटसेल्फ, द कलर उनके उसके अंदर नहीं चला जाता है। वो एक सिर्फ ट्रांसपेरेंट कलर है जो जिसके साथ रखा गया है वो कलर उसमें दिखता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हुआ कि स्फटिक मणि जो रहती है, क्रिस्टल जो रहता है, उसमें भले ही हमने काला कपड़ा नीचे रख दिया, वो काली दिखाई दे रही है, लेकिन वो काली नहीं हुई। सो इज इट क्लियर टू ऑल? सबको मेरे ख्याल से क्लियर होगा। यहाँ क्या लिखा है देखिए, वो मैं पढ़ता हूँ यहाँ। जिस प्रकार स्फटिक पाषाण में, एक मिनट, यहाँ जो वर्जन है उसमें उसमें दिया है, का पढ़िए कोई। एक ही साथ अनेक प्रकार के बंधन को विमोहित, इसमें वो दिया है क्या आपको? हम्म जिस प्रकार स्फटिक पाषाण में अनेक प्रकार के रंगों की निकटता के कारण अनेक रूपता दिखाई देती है, स्फटिक का निर्मल स्वभाव दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार एक ही साथ अनेक प्रकार के बंधन की उपाधि की अति निकटता से वेग पूर्वक बहते हुए अस्वभाव भावों के संयोग वश अपने स्वभाव भाव के तिरूभूत हो जाने से जिसकी भेद ज्ञान ज्योति पूर्णतः अस्त हो गई है और अज्ञान से विमोहित है हृदय जिसका, ऐसा अप्रतिबुद्ध अर्थात अज्ञानी जीव स्वपर का भेद ना करके उन अस्वभाव भावों को अपना मानता हुआ पुद्गल द्रव्य में अपनापन स्थापित करता है। ये यहाँ जो आचार्य अमृतचंद ने टीका लिखी है, मैंने उसका ट्रांसलेशन पढ़ा है हिंदी में। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए,
हम लोग जो भी चर्चा कर रहे हैं ना, रियल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आचार्य अमृत चंद is giving 3 example, each gatha 1 example. So this example of Spatik Mani, second example of Ghas and Anas, and third example will be खारापन, salt, है ना, ऐसे नमक के खारेपन का एग्जाम्पल वहां देंगे यहाँ इन गाथाओं का. तो ये एग्जाम्पल हमें इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमें बिना एग्जाम्पल की कोई भी चीज समझ में नहीं आती है. जैसे मैं आज क्लास पढ़ा रहा था, यहाँ फिजिकल क्लास लगती है मेरी, तो वहाँ मैंने ऐसा बोला कि सभी लोग अपनी लाइफ को व्यवस्थित करने में लगे हुए हैं. हर व्यक्ति यही बोलता है, सौरभ जी अभी थोड़ा सा व्यवस्थित बना है. Once just all things will get settled, then I will come in class. तो मैंने उनको ये बोला कि जो हमें अव्यवस्थित व्यवस्था दिखती है ना, वह अव्यवस्थित सी दिखने वाली व्यवस्था भी पूर्ण व्यवस्थित है. Though this sentence is not mine, but I have read from Jinwani and just delivered there in class. तो मैंने कहा ये जो पूर्णता व्यवस्थित व्यवस्था दिख रही, अब अव्यवस्थित व्यवस्था दिख रही है, वो भी व्यवस्थित है. So एक नया स्टूडेंट आया था, नया मतलब वो आता रहता है कभी-कभी, वो बहुत इन्फ्लुएंस हुआ. बोले ये तो एकदम बढ़िया वाक्य हो गया, एंड आई विल ट्राई टू अप्लाई इन माय लाइफ. कि जो व्यवस्थाएं अव्यवस्थित दिख रही हैं, वे अव्यवस्थित दिखने वाली व्यवस्थाएं भी पूर्णतः व्यवस्थित हैं. तो ऐसे ही ये जो हम एग्जाम्पल समझ रहे हैं, ये स्फटिक मणि का, घास का समझेंगे और नमक का, ये एग्जाम्पल हमें भेद विज्ञान कराने के लिए पर्याप्त है. I just always say one thing to all of you, that the clarity in our concept is mandatory for self-realization. अगर हम ऐसा मान के यहाँ बैठे हुए हैं, if we are thinking and and listening समय सार, that Saurabh ji is talking about the third party, he is not talking about me, but he is talking about the third person. नहीं समझ में आएगा, हमें पता है. हमें जो है ना मेरे बारे में बोल रहा है, he is just talking with me only, केवल मेरे बारे में बोल रहा है. अगर उन्होंने ऐसा कहा है कि जीव और पुद्गल अलग अलग है, इट मीन्स वो मुझसे बोल रहे हैं. he is talking with me, he has connected with me and directly just sending the message, he is transmitting the message to me that your soul and body is not one, both are separated, and he just presenting here many examples to clarify this topic. तो मुझे वैसा श्रद्धान अपना बनाना है. तो ये हम लोग इन 3 गाथाओं को हमने आज लिया. वैसे तो पूरा समय सार बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी जो गाथा जैसी आएगी, तो उस टॉपिक में वो गाथा महत्वपूर्ण है. ठीक है, तो हमने 3 गाथाओं को भी समझा, और अगली बार हम लोग जो स्फटिक मणि आदि के 3 एग्जाम्पल हैं उनको क्लैरिफाई करें. ठीक है, अभी समय हो गया हमारा. कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछिए. आप लोग मुझे मतलब क्वेश्चन पूछते रहिए, या मैं पूछूं तो आप लोग बताते रहिए. इससे क्या होगा कि एक मुझे पता चलता रहेगा कि यू आर लिसनिंग मी एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग. नहीं तो मुझे क्या लगता है कि मैं 1 घंटे से मैं ही बोल रहा हूँ और आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो मैं कभी कोई क्वेश्चन पूछूं तो आप लोग बताइए. चलिए, अभी समय हो गया क्लास का हमारा. कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, नहीं तो हम लोग जिनवाणी स्तुति लेते. Also, जैसे मैं सौरभ जी ने कहा, if you have questions ask, but if you don't have now and you think during the week about this and come back next week or any week when we take the class, before that just ready with your questions, or on the group just put your questions or directly send it to Saurabh ji and you should be able to get an answer. The whole point is to clarify our doubts, same time because think further, that's the whole idea here. And same time, so Saurabh ji needs the feedback from everybody when he's teaching, which means what he's teaching is that been understood or not, or he can repeat that again if needed. ठीक है सौरभ जी, जिनवाणी स्तुति. ओके. निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ वंदना 7 बार
जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। थैंक यू सर जी। थैंक यू। जय जिनेंद्र।